as what we saw yesterday, Mr. Khan developed the 84 course, or rather 250 kilometers road. This is where we are at, in the boundaries of Rajasthan, in the actual parikrama mark of Govardhan Parvat, which is of 21 kilometers, and this is where you can see behind me the gate. The Rajasthan border has started, and I would request the photographer to kind of even focus the side path for the pilgrims. Look at the width of this, which gives us the convenience to walk in both directions in one way, so that we don't really come in between the ways of the car. Whereas I just was there previously and I hardly could walk myself because the path was very narrow. The other thing that I also would like to highlight, what Mr. Khan did, that not only did he develop the infrastructure for the convenience, he also is trying to develop the aesthetics, so that while the pilgrims are walking, like say for example I'm walking, and if I want to rest, then I can rest in front of these kind of paintings, which would give me a glimpse of Lord Krishna's Leelas. It is a pictorial representation of what Krishna ji, along with his gopis or along with his friends Gwalas, really did in this in his yug, what we say, or in his time. I would request Mr. Khan to say more about what was the concept, how did he conceptualize this, and is this all along the way, Mr. Khan? ये विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत जो है वो मुखारबिंद से शुरू होता है, जिसको दान घाटी बोलते हैं, और वहाँ से इस तरीके से लोग इसी डायरेक्शन में अपनी सप्तकोशी परिक्रमा को पूरा करते हैं। अगर यूं देखें तो ये 21 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है जिसमें हम चल रहे हैं। आप देखेंगे उधर तो जो है वो है पक्का यानी सड़क, और ये है कच्चा। कच्चा मीन्स जो पैदल यात्री हैं वो इस गोवर्धन की सप्तकोशी परिक्रमा को पैदल चल करके करते हैं। हमारा प्रयास रहा है कि राजस्थान में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा चौड़ा है। आप देखिए कितना चौड़ा है। इस जगह को हमने फैला करके कोशिश करी है कि यहाँ जितने इंक्रोचमेंट हैं उनको हटा करके और हम इस मार्ग को बनाने का कोशिश करें। और मैं धन्यवाद करूँगा कि सब लोगों ने सहयोग किया, और आज ये मार्ग अभी आप देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी प्रक्रियाधीन है, काम निर्माणाधीन है। ये काम जब पूरा हो जाएगा तो ये मार्ग अच्छा हो जाएगा। तो ये राजस्थान में सप्तकोशी परिक्रमा यानी लगभग 21 किलोमीटर का है, और उसमें से राजस्थान में लगभग 1200 मीटर राजस्थान में पड़ता है, बाकी सारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसमें आपका मुखारबिंद है, दान घाटी है, और यहाँ हम थोड़ी देर बाद में आगे जाएंगे तो ये पूंछड़ी का लोटा है, और इस पूंछड़ी के लोटे में मतलब यानी इस गोवर्धन की आगे तो मुख हो गया और पीछे पूंछ हो गई, तो ये यहाँ आकर के पूरा होता है, तो ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। और ये पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए हमने एक माननीय वसुंधरा राजे सरकार ने एक अपना प्रयास किया है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो मैं वर्तमान सरकार से भी उम्मीद करूंगा जिस तरीके का माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने काम किया उसी तरीके से काम करने की कोशिश करें। I would like to reiterate that Mr. Khan not only thought about people, like in our culture it is said, let me take a step back. In our culture it is said that one of the bhaktis is to serve the humankind or to serve the bhaktas themselves. Mr. Khan again is a living example of one of those bhaktas who actually are thinking of the devotees who are coming, who are thinking of their convenience, their comfort. Like you can see, we are 6 of us who can walk together. Where I mean, it's very rare where you can see this kind of width in the parikrama marg across the country. I would really request the government of all states, and even including the state of Uttar Pradesh, to really think about the comfort and convenience of the devotees, because this is so famous, and there's so much of faith of people in Lord Krishna and in this parikrama. So it is the responsibility of the government to really think about the comfort of the pilgrims. Thank you. Radhe Radhe. सर, मेरा पहला एक क्वेश्चन है, जैसे आप आए, आपने ये मुझे बैकग्राउंड में बताइए सर, आपने कैसे स्टार्ट किया वो हिस्ट्री? देखिए, मैं देख रही हूँ सरपंच जी भी हैं, बाबा भी हैं, आपने कैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया, प्लान किया? ये क्या है,
ये गोवर्धन पर्वत की पूजा सब ब्रज क्षेत्र के बाहर भी लोग करते हैं। लोगों की आस्था है इसमें। आप ये इधर दाईं तरफ यानी राइट साइड में देख सकते हैं, जो ये पर्वत है ये हम सब के लिए पूजनीय है। इसको गोवर्धन पर्वत बोलते हैं और कृष्ण भगवान की एक तरीके से ये देखा जाए तो लीलाओं का केंद्र बिंदु है। इसको अगर पूरे ब्रज को आप देखोगे, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीनों में ये सेंटर है और ये एकदम सिंह नुमा है। बुखार बिंद यानी उसका उधर जाकर के और दान घाटी के पास मुख है जी। और ये आते 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 आप देखोगे धीरे 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 सिंह की तरह, मतलब वो जाकर के पूंछ है। सर मुझे इसको क्षमा करिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये आपको इतना ज्ञान कैसे, ये कैसे किया? ये आप... देखिए, ये सब चीजें कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख करके नहीं आती। जी। ये अपन सामान्य नागरिक हैं, सामान्य इंसान है। अब हमारी हो सकता है पूजा पद्धति अलग अलग हो, लेकिन जो हमारी संस्कृति और संस्कार है वो तो इस देश के हैं। हमारा डीएनए वही है, हमारा देश वही है, जिसको बार बार हम लोग सनातन बोलते हैं। यानी सब धर्मों का जहाँ समावेश और सम्मान, उसी को सनातन बोलते हैं कि सबका समावेश कर ले। जो संस्कृति सब चीजों का समावेश कर ले वही सनातन है। जय हो। I would like to conclude I'm sorry sir, I'm interrupting you, but I definitely want to give a remark here. This is a true definition of Sanatan, what just sir described, and it is so amazing that a person of a different religion is standing with people of another religion and actually doing the work of that religion. I don't want to get into the religious debate, but at the same time it's very surprising to me personally seeing what sir did and how much knowledge he has, which unfortunately even I might not have the kind of knowledge he has. So that's what I really wanted to highlight. Sorry sir for interrupting you. Sir, अब आप वापस जो ये जो शिलाएं हैं ये लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, जैसे अपन बिल्डिंग बनाते हैं ना, जी जी, तो वो एक तरीके से एक भवन बना के जाते हैं अपनी मनोकामना का। सभी तीर्थों को ला करके और उनको दर्शन करवाए यहाँ ला करके, उसकी लोग परिक्रमा करते हैं। ये गोवर्धन परिक्रमा की तलहटी परिक्रमा है और राजस्थान क्षेत्र में ये 400 मीटर है। आप उधर देखेंगे, देखिए वो आप उधर सोनो उधर करिए, तो यात्री जा रहे हैं, वो पद यात्री परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें लोगों की आस्था है। सर आपने कैसे कन्विंस किया? मेरा दूसरा प्रश्न है, जब आपने ये काम स्टार्ट किया होगा, आई एम श्योर कई सारे ऑपोजिशन आए होंगे, नहीं, सहयोग भी आए ये जो होंगे। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में बना है। निश्चित रूप से जो माननीय वसुंधरा जी की और मेरी जो परिकल्पना थी उसके अनुसार तो नहीं बना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं और बहुत सारी एक तरीके से अपन ये कहें कि लिमिटेशंस है। एक सीमा के बाहर आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों की आस्था है। आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो आस्था और विकास दोनों का समन्वय कैसे हो, उसका परिणाम है ये। इसलिए इसको थोड़ा सा उसी लेवल का बनाया गया जिस लेवल की यहाँ, क्योंकि इसकी जो बहुत पुरातत्व है, ये पौराणिक स्वरूप खत्म नहीं हो, क्योंकि लोगों की ये एक तरीके से बाउंडिंग्स थी कि नहीं साहब, हमारे इस गोवर्धन पर्वत का जो हमारे लिए पूजनीय है उसका पौराणिक स्वरूप बिल्कुल टच मत करिए आप, उसको भी ध्यान रखना और यात्रियों को भी सुविधा देना, दोनों में समन्वय बिठा करके चलना, उसका ये परिणाम। That is why it is always said that the development has to be at the cost of disturbing any religion, disturbing any belief, or disturbing any faith. You look here what Mr. Khan just said, that he developed not at the cost of disturbing the faith of any particular religion. That is commendable when you keep the faith, yet at the same time develop things for the people, for their convenience and their comfort. We saw yesterday, and I've been seeing this today also, how Mr. Khan developed the road
he also took care of the shelter, he took care of the water, he took care of the comfort. But at the same time, it's very difficult. Think about or imagine when you're walking, if you just see the dirt, if you just see something which is not very appealing, eye appealing, the motivation to do so much of walking, it sometimes comes down. And Mr. Khan, actually, if you can look, would request the photographer to concentrate on the beauty of this gate, which he constructed. And look at, he could have just constructed a simple thing, but he actually constructed with aesthetics. Now, this is a very small detail, but it is a very important detail because that gives the beauty of the gate. The passers-by, they think about it, they dwell on how Krishna would be. They start imagining, because of which they can actually cover lots of walking. Even if you can see on my left, there is a picture of Radha Krishna. Now, Mr. Khan actually did this work, inspirational work, of keeping the aesthetics also into mind. Again, all the entire job is phenomenal, which is done by Mr. Khan. Sir, I would request, आप मुझे ये बताइए, आपने इससे क्यों ब्यूटी भी क्यों देखा? देखिए क्या है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से जब मेरी बात हुई, मैंने उनको कहा कि जहाँ से राजस्थान में 84 कोस परिक्रमा शुरू होती है, उस पॉइंट पर हमें एक स्वागत द्वार बनाना चाहिए और वो हमारी राजस्थानी परंपरा को बिलोंग करे, क्योंकि हमारे राजस्थान में प्लेसेस, फूड्स और बहुत पुराने, बहुत 2-2 हज़ार साल पुराने मंदिर मिल जाएंगे जिनमें इस तरीके की कला का प्रदर्शन किया गया है, इसी तरीके के फोर्ट मिल जाएंगे। तो राजस्थान में जब कोई व्यक्ति एंटर हो और जब पदयात्री, जब तीर्थयात्री जब एंटर हो, उसको लगे कि मैं राजस्थान में प्रवेश कर गया हूँ, तो ये एक तरीके से राजस्थान की 84 कोस परिक्रमा का प्रवेश द्वार है। और ये कोथरा में यहाँ ये निर्माण इसलिए किया गया कि आप देखेंगे आपके पीछे उत्तर प्रदेश का सेक्टर है, उसकी हालत भी आप देखेंगे, और यहाँ आप देखेंगे राजस्थान का। आप इसको अपने कैमरे को दौड़ाइए, आप देखेंगे ये 84 कोस का लगभग 81 किलोमीटर हिस्सा, यानी टोटल 252 किलोमीटर में से 81 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। और इसमें अलग अलग जगह हमने प्रवेश द्वार बनाए और 7 मीटर सीमेंटेड रोड बनाई है। उसके बगल में हमने पैदल यात्रियों के लिए पैदल पथ बनाया है। हर एक 1 किलोमीटर पर हैंड पंप लगाया है। हर 12 से 14 किलोमीटर पर हमने यात्रियों के लिए विश्राम स्थल यानी शेल्टर बनाए हैं। तो इस तरीके से और 15,000 दोनों तरफ पेड़ लगाए और ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखा गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का समावेश करके इस मार्ग को लोगों की धार्मिक भावना के अनुसार विकसित करने का हमारा प्रयास था। Components of bridge art and bridge culture. Like for example, the basic which we don't even think is the infrastructure. Now, who builds the infrastructure within bridge region? It's the government. I have the ex-minister Mr. Yoonus Khan with me, who not only did an immense work in this culture, but what he did is so commendable. I would just say that there are 4 aspects what he did. He built the road which you can see here. It was nothing. It was a complete in Hindi we say kacha rasta, where people couldn't even drive. That was the first thing he built for the pilgrims. The second is the footpath that you see, which we all are standing here. The third is the tree. I would request the photographer to point out the trees which he planted for the shades of all the pilgrims. And the most important, which nobody thinks, is the city planning, is the drainage. When it rains heavily, the water actually drains and comes to the farms that you can see, the both sides, and so this is a natural way to harness water. Instead of water going in the for waste, it is actually going in the farms to grow the crops. So these are the things. It would be better explained from the man who did the job himself. Sir, can you explain it in Hindi? देखिए, ये 3 प्रकार की परिक्रमा है गोवर्धन की। पहली परिक्रमा है वो है तलहटी परिक्रमा,
दूसरी परिक्रमा है वो सप्तकोशी परिक्रमा, और तीसरी कोस है 84 कोस परिक्रमा। जो 84 कोस परिक्रमा है उस मार्ग पर हम अभी सिमरन जी के साथ में और गुरुदेव के साथ में चल रहे हैं। तो ये राजस्थान में लगभग 81 किलोमीटर का हिस्सा आता है, एकदम कच्चा था। इसको सीमेंटेड रोड बनाने में माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और वसुंधरा राजे जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये काम किया। तो ये मैं चूँकि PWD मिनिस्टर था तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सार्वजनिक निर्माण विभाग, तो ये PWD का हिंदी अर्थ है, और ये ब्रज 84 परिक्रमा है, इस पर लिखा हुआ है। ये इस तरीके का ये 81 किलोमीटर का एक तो कच्चा जिसमें श्रद्धालु पैदल चलते हैं, दूसरा ये आप देख रहे हैं 7 मीटर चौड़ा शोल्डर सहित, पहले 7 मीटर चौड़ा रोड है उसके शोल्डर भी, और ये बाकायदा पाथ का ये बना हुआ है। और ये आप जो पेड़ देख रहे हैं ये इस तरीके के 15,000 पेड़ हमने लगाए, और यहाँ ये पूरा प्रोटेक्शन वाल बनाया है जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं। ये पैदल पाथ है, इसको मेंटेन करने की जरूरत है। पेड़ आप जो देख रहे हैं ये मैंने खड़े रह करके चुनवाई है, देखिए अब ये पेड़ इतने हो जाते हैं 15,000, आप आइडिया लगा सकती हैं कितने नज़दीक पेड़ है। देखो 1 2 3 4 नज़दीक में ऐसे पूरे 81 किलोमीटर में 15,000 पेड़ मेरे हाथ से लगाए। It's very rare that we see government really doing this kind of work. I would like to thank Mr. Yoonus Khan, who not only did the planning but actually oversaw the entire execution of the program, just like how he said in the video where he himself chose the plants and potted them on the roadside. I hope that all the government officials, if they really can dedicate what Mr. Yoonus Khan did, India would be much better, and we would be able to preserve our culture, our infrastructure and our heritage. ये एक ऐसा सड़क है जो अगले 50 वर्ष तक इसका कुछ भी नहीं टूटेगा। मैं तो 50 वर्ष की कह रहा हूँ, हो सकता है कि 100 साल बाद में भी ये सड़क इसी हालत में मिले, क्योंकि जिस तरीके का हमने इसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और जिस तरीके के हमारे जो नॉर्म्स हैं उनको हमने अडॉप्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सड़क कम से कम 50 वर्ष तक चलेगी। राधे राधे। A part of the preserving the culture is also preserving monuments, our heritage, our monumental heritage. Now, who does the work? Who owns it again? Is it the owner of these forts? Is it the government or people? But it's the government here, and ex-Chief Minister Ms. Vasundhara Raje did a phenomenal job in preserving all these places and many more, which we would show you in upcoming videos. But this is the fort of Deeg, which was preserved, restored by Ms. Vasundhara Raje. The details of would be told by Mr. Yoonus Khan, an ex-minister in her own government. अगर हम देखेंगे तो ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा जो है, इसी मार्ग पर ये डीग का सबसे पुराना किला, जो हमारा एक तरीके से बहुत ऐतिहासिक भी है और हेरिटेज भी है, उसका वापस एक तरीके से जीर्णोद्धार करने का काम हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया। और ये हमारे मोनूमेंट्स कैसे बचे रहें, वो उनका सोच था। और चूँकि ये हमारी बहुत ही ऐतिहासिक और स्पिरिचुअल मतलब और धार्मिक मार्ग है, इस पर इस तरीके के मोनूमेंट्स का बचा रहना ज़रूरी है। मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि इस तरीके के मोनूमेंट्स की संरक्षण के लिए काम करें। और सुमिरन जी ने चलते चलते पूछा कि ये क्या है, तो आज ये स्वयं देख रही हैं कि ये हिंदुस्तान में आज भी इस तरीके के किले जो अपना महत्व रखते हैं वो आज भी खड़े हैं। और ये इस बात का द्योतक है कि मतलब पुराने ज़माने में भी हिंदुस्तान के पास में एक अपनी संस्कृति, संस्कार और धरोहर थी। See, this is how we should be preserving our culture. It's unless and until we preserve our monuments, unless and until we preserve what was gifted to us by or what we inherited, we would be lost in the coming future in just a concrete jungle of buildings and urban cities. Radhe Radhe. मेरा नाम परमिंदर सिंह है और मैं यहाँ नज़दीक जदावली गांव का रहने वाला हूँ और डी कृषि उपज मंडी का वाइस चेयरमैन हूँ। जनसेवा, खेती, धार्मिक जो भी है वो सब हमारा एक तरह से काम है। और
ब्रज क्षेत्र तो राधा रानी और कृष्ण भगवान की वजह से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये जैसे हमारा गांव है ददावली, ये भी कृष्ण भगवान की दादी का गांव हुआ करता था। ऐसे ही गांव गांव में कोई ना कोई रिश्तेदारी उनकी रही और यहीं 84 कोस में उन्होंने बहुत ज़्यादा लीलाएं की, चाहे वो गोपियों के साथ हों, चाहे अपने भक्तों के साथ हों। कृष्ण भगवान कण कण में, ब्रज के में हर कण में कृष्ण भगवान की अनुभूति होती है, ऐसा सब लोगों का मानना है, हमारा मानना है। कई ऐसे तीर्थ हैं जैसे गिरिराज जी हैं, आप दंडवत वो परिक्रमा अगर करेंगे, चाहे जो मिलेगा, जो चाहेंगे जो, ऐसी महिमा हमने किसी दूसरी जगह देखी नहीं। Radhe Radhe. I would like to introduce you to another important personality here in the Brij region, Miss Anita, who has been phenomenal in contributing to the project that I was talking to you about, a project which was being executed by Mr. Khan for last couple of days that I have been referring to. And she knows about Brij. She and her all team members have been very instrumental in implementing that project. I would like to give it to her and let her explain what is Brij, how did she develop, what is her expectation. I would let her talk herself. राधे राधे। मैम, आप बताइए ब्रिज की पहले तो इम्पोर्टेंस, महिमा बताइए हम सबको, क्यों ब्रिज इतना ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। आप डेवलपमेंट के लिए एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप क्या कर रहे हो, कैसे करते हो और क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट की और कहाँ कमी रह रही है? ये ब्रिज जो है अपने आप में एक संस्कृति है, संस्कृति जो पूरे विश्व में, संस्कृति जो पूरे विश्व में जो है ना उस प्रख्यात है। कृष्ण भगवान की आप समझेंगे तो उनका जो बचपन है वो यहाँ बीता है और उन्होंने बचपन में अपने जो भी कार्य करे वो सब हमारे इस क्षेत्र में करे हैं। कहीं पर उन्होंने गाय चराई हैं, कहीं पर वो गए हैं, कहीं पद चिन्ह हैं उनके, तो उनकी सारे जो ब्रिज की उनके यादें हैं वो सब यहाँ पर संजो के रखी हुई हैं। आज 5000 साल बाद भी वो सब यादें जगह जगह पे संजो के रखी हुई हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर भी उसमें गए और हम ये समझते हैं कि ये चीज़ हमारी कल्चर है, इस कल्चर को हमें बचाना और इसको आगे बढ़ाना ये भी हमारी ड्यूटीज़ हैं। इसलिए हमने सबसे पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने और हमारे PWD मिनिस्टर यूनुस खान जी ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया कि हमारे राजस्थान के अंदर जो 82 किलोमीटर्स आता है 84 कोस का, उसको बना के पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खड़ा किया। ये पैदल चलने के लिए है, ये मतलब वाहन चलने के लिए है और उसके साथ साथ हमारे यहाँ टॉयलेटरीज़ की ज़रूरत थी, सब एक जो रुकने के लिए विश्राम गृह होता है वो भी हमने मेरे ख्याल से हर 20-25 किलोमीटर से बनाए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और जिससे सब लोग यहाँ रहे। मुझे बड़ा ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि इसका मेन पार्ट यूपी में है, तो हमारे पास छोटा सा पार्ट है। सब कहते हैं कि 10% जो है ब्रिज की संपत्ति हमारे पास है, लेकिन उसके बाद भी उस 10% संपत्ति को हमने इतने अच्छे से बना कर रिसर्च किया कि आज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी जैसा हमने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया सिर्फ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बना रही है मॉड्यूलर। तो मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही है कि इस संस्कृति को आगे बढ़ाना और इन मंदिरों की जो मैं समझती हूँ कि सारे मंदिर राजस्थान में, देश में, सारे विश्व में सारे मंदिर राजाओं द्वारा या जो पैसे वाले लोग हैं, रिच पीपल्स हैं, उन्होंने बनाए हैं। ये केवल ये मंदिर हैं हमारे जो स्वयं कृष्ण भगवान ने बनाए, जो कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता के लिए आदि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर को बनाया है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे भगवान के बनाए हुए मंदिर हमारे पास हैं और उनकी वो जो संपत्ति है उनको हम संजो के रख रहे हैं और आज सब लोग आ रहे हैं। और इतना भी मैं कहना चाहती हूँ कि इस मंदिर में जिसने जो मांगा वो पाया। आप उधर देखेंगे पहाड़ियाँ, देखिए ये ब्रिज क्षेत्र का पार्ट है। ये पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों को लोग तोड़ रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने इन पर रोक लगाई कि ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, ये हमारी आस्था का हिस्सा है और ये आस्था का हिस्सा है और इसको जिंदा रखना हमारा धर्म है। तो आप ये देखेंगे ये पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, ये ब्रिज का हिस्सा है और ये यहाँ से शुरू हुई हैं तो ये आप देखेंगे यूँ जाती हैं पहाड़ियाँ आगे तक। इनके अंदर एक तरीके से माइनिंग बिल्कुल बंद कर दी गई, माइनिंग बंद कर दी गई
वसुंधरा जी ने कहा कि हमारी ब्रज की संस्कृति और कला दोनों जिंदा रहना जरूरी है। तो इन पहाड़ियों पर जहाँ कृष्ण भगवान ने अपने अनेकों क्रीड़ाएं और लीलाएं की, उनका यहाँ एक तरीके से जिंदा होना बहुत जरूरी है। इस पर खनन पर रोक लगाई और ये किसानों को प्रोटेक्ट किया। आप ये देखेंगी कि ये आपका, ये देखेंगे ये हमारा परिक्रमा मार्ग है और पहले उधर इधर था लेफ्ट साइड में, चूंकि इधर जगह नहीं है तो हमने राइट साइड में फुटपाथ को बना दिया। और आप ये देखेंगे, देखो आप लंबी दूर तक यूँ देखेंगे कितना सुरम्य मार्ग है, कितना सुंदर मार्ग है। और ये सूर्यास्त हो रहा है इधर, और इधर आप कितना बड़ा अच्छा सीन है। तो एक तरीके से इसको मैं आपकी भाषा में कहूँ तो स्पिरिचुअल टूरिज्म भी यहाँ अच्छा डेवलप हो सकता है। और हमारी लोकल भाषा में कहें तो रिलीजियस टूरिज्म का मतलब ये हुआ कि भाई जब ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे और हमारी 84 कोस, सप्तकोसी परिक्रमा और तलहटी परिक्रमा डेवलप हो जाएगी तो बहुत सारे लोग यहाँ अपने होटल्स बनाएंगे, कुछ लोग अपने गेस्ट हाउस बनाएंगे, कुछ धर्मशालाएं बनाएंगे। तो यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा यात्री लाखों की संख्या में चलेगा तो लोगों के रोजी रोटी का साधन भी मिलेगा। और यहाँ लोग नए साल में कृष्ण भगवान के दर्शन भी करेंगे, गोवर्धन पे पूजा करेंगे, 2 दिन रुकेंगे। तो उससे क्या है कि जब वो रुकेंगे तो लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। फिर उनको टैक्सी भी चाहिए, उनको खाना भी चाहिए, उनको यहाँ के जो साजो सामान है वो भी खरीदने के लिए चाहिए, ये सब चीज़ें। See that how the sir described that not only the government is making investment in building the infrastructure, but they are also preserving the natural beauty that has been given or inherited to us. Just like how sir explained, the government or our minister, our chief minister, Miss Vasundhara Raje, did not allow the developers to mine these mountains, mine these hills, mine these farmers. They protected the farmers. Only why? So that the pilgrims, while doing the parikrama, they can enjoy the natural beauty. Just look at how beautiful it is. If COVID has taught us nothing, but it has taught us one thing, to preserve our natural resources so that we can have a pollution-free world and we can sustain under the natural beauty. Thank you, Radhe Radhe. So ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा में हर 1 किलोमीटर पर इस तरीके का एक हैंडपम्प बनाया है जिससे पैदल यात्री आए, उनको प्यास लगे तो वो पानी पी सकें। और इसी तरीके से शेल्टर बनाए हैं, शेल्टर भी आगे चलेंगे तो शेल्टर आएगा। तो हर 20 किलोमीटर पर एक शेल्टर, हर 1 किलोमीटर पर हैंडपम्प और यात्रियों के पैदल चलने का पथ। Can somebody really think so much for any pilgrims? I haven't come across any example, any such example where not only the road, the path, the footpath, the drinking water, the employment, the drainage, what is left? I still have to uncover this mystery. Let's see what is there and what else he has done. But this is truly phenomenal. Thank you, Radhe Radhe. As I said in my previous video, that everything that he has thought of, but I think Mr. Khan is full of surprises, which again, I mean, even being in a corporate life, I couldn't have thought of so many things as what he thought of being a minister for the devotees. What he also thought of is this beautiful concept, Vishram Greh, which is nothing but a rest house for the pilgrims to take rest while they are doing parikrama, because it's not a small parikrama, it's 252 kilometers and in this hilly area. So he still thought of that, and not only he did actually construct the restrooms. Now, unfortunately, we are seeing the dilapidated conditions of these rest houses only because maybe the government is not maintaining it, while he did a phenomenal and amazing job to construct them, to even conceptualize this whole thing. But the current government is not really thinking about it, which is really a very sad state. I would request Mr. Khan to tell about why did he think of this whole Vishram Greh or the देखिए, concept. जब पैदल यात्री लाखों की संख्या में चलते हैं परिक्रमा पर, इस मार्ग पर, तो उन लोगों को विश्राम भी करना होता है और जन सुविधाओं का भी उपयोग करना होता है। तो ये इस मार्ग पर कोई इस तरीके का था नहीं। तो मैंने ये सोचा कि भाई हर 20 किलोमीटर पर इस तरीके के मतलब जो है रेस्ट हाउस बन जाएं। आप उधर देख रहे हो वो जन सुविधाएं हैं, लेडीज़ के लिए अलग हैं, जेंट्स के लिए अलग हैं। इस तरीके के 14 शेल्टर हमने बनाए। माननीय वसुंधरा जी का निर्देश था कि महिलाओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो टॉयलेट वगैरह जाती हैं रोड पर, थोड़ा मतलब जो है खुले में जा नहीं सकती, इसलिए उनके लिए इस तरीके की सुविधा क्रिएट करें। तो ये हमने सुविधा तो क्रिएट कर दी, लेकिन इसकी मेंटेनेंस जो है वो नहीं हो पा रही है। तो मेरी 2 अपील है, पहली सरकार से और दूसरी जनता से,
कि भाई ये हम जन सुविधा के लिए हैं, यात्रियों के लिए हैं, और जो हमारे एक तरीके से धर्मावलंबी भी आते हैं उनकी सेवा में हमें इनको मेंटेन करना चाहिए। मेरा तो इतना ही रिक्वेस्ट है। बाकी तो स्थानीय लोग इस पर फोकस करें, सरकार भी करे, और जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, प्रधान हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जन सुविधा की चीज़ें हैं, इनको मेंटेन करना चाहिए। और ब्रज 84 गांव में हमारा गांव आता है बरौली दाऊ, और बरौली दाऊ एक केदारनाथ और बद्रीनाथ के दोनों तीर्थ स्थलों के बीच में, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ। यहाँ पर हजारों लोग, साधु संत, पूरे विश्व के हर लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ माथा टेकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यूपी बॉर्डर से लेके यूनुस खान जी और माननीय वसुंधरा जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जो कि यहाँ पर किसी ने आज तक किया नहीं। हम इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, यूनुस खान जी को भी, माननीय वसुंधरा राजे जी को भी, जो हमारे यहाँ ब्रज 84 के कोस में पूरे में परिक्रमा की मार्ग बनवाया। You've seen, I was in the Pashupa village before this, and this is Bharoli village. And trust me, this is not an advertisement campaign or a promotion campaign of Mr. Khan. I've been consistently hearing this from the very common people, the commoners here, that the work done by Ms. Vasundhara Raje and Mr. Yoonus Khan has been phenomenal, only because this is like, you know, the wish, the prayer, the blessing given by each commoner to these two people for executing this big project, which is you know, by itself is so great, because it has allowed the devotees to visit their Lord, their faith. They have restored everything. And again, I've been tired listening this. I also was like, is this kind of, you know, some kind of advertisement program? But the moment we stop the car, they see Mr. Khan and they come and say thank you, because, and that's a heartfelt thanks, not because he's in power or he's in any kind of position. Thank you. Radhe Radhe. बोलो गिरिराज महाराज की जय, विशाल भगवान की जय, नर नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राम। मेरा नाम अली हुसैन है, गढ़ा जान का रहने वाला हूँ। और ये जो ब्रज और मेवात दो संगम हैं, इसमें मुसलमान आबादी ज़्यादा है, लेकिन ब्रज और मेवात दोनों एक साथ अपने त्योहारों को, ब्याहों को, शादियों को एक साथ मनाते हैं। हम उनके जाते हैं, वो हमारे आते हैं। Yes, this is another example of the religious unity that we are seeing, and also an example of Lord Krishna's teachings of love. Love unites all, irrespective of their religion, caste, color, creed, or anything, because Lord Krishna said there is no discrimination between any human being. And as Sarpanch ji said, that there is a 65% Muslim population, but the temple is situated in this village, which has been worshipped by Hindus, and they all came together again under Mr. Khan's leadership to develop this area. And as Sarpanch ji said, that it was not in the interest of Mr. Khan to develop this area, in spite of the fact that he could have won easily because of the Muslim population, but he did not do that. What he did was a completely selfless job to develop the area only for the devotees who come to visit the temple. Again, it's phenomenal, and we are very thankful to Mr. Khan for developing the area and allowing the pilgrims to visit the temple. Thank you. Radhe Radhe. आगे से पंजा चौड़ा, पीछे से कितना सा बड़ा पंजा है, देखो आप तुम गहराई से बहुत गहराई से देखो। भगवान का चरण है, इसीलिए इसका नाम चरण पहाड़ी है। आप जल्दी रिकॉर्ड करो तो सूर्यास्त हो जाएगा। So again, as I was hearing, I was in the car traveling with both the Sarpanch and Mr. Khan. I came to know that there was no road or there was no approachability to the temple, which has been situated up on the mountain. So how would the devotees come? And if the devotees don't come, they don't get to know
the importance of this temple, like how Panditji said that Krishna Bhagwan used to come here and play the flute. Now, flute is one of the musical instruments, or the origin of the bridge music, bridge art. Actually, this is one of the spots. So, approachability is one of the basic, or I would say the most important pillar of preserving any art and culture. So, again, the whole approachability, this temple construction, and the look after of it was under Mr. Khan, and who did a beautiful job, doing this for the devotees again. This was jointly done by Mr. Khan and the Bridge Vikas Trust under Mr. Khan's leadership, so that the pilgrims can come and visit and restore their faith. There was an incident where few people were trampled because of the crowd and because of this dangerous hilly area. Again, thanks to Mr. Khan, who actually developed this whole approachable road where even the cars can come and they can be parked, and the pilgrims can come easily and visit the temple. Thank you. Radhe Radhe. थाली है जहाँ कृष्ण भगवान ने एक गोपिका के आग्रह पर भोजन किया। अब उनके पास बर्तन नहीं था, तो उन्होंने एक, अभी आप देखेंगे कि पहाड़ी के ऊपर ही थाली नुमा, उसमें उन्होंने उनको भोजन परोसा और उन्होंने भोजन को ग्रहण किया। तो लोगों की आस्था है इसमें, लोग इसकी पूजा करते हैं। अब यहाँ जो लोग इस तीर्थ पर आते हैं तो उनको सुविधा चाहिए, उसके लिए हमने ये विश्राम गृह बनाया, उधर सुविधाएं दी, और उनके वाहन आए उनके खाने के लिए, यहाँ आराम से टेंट लगाएं, भोजन बनाएं और अपना कीर्तन भजन करें और अपने कार्यक्रम यहाँ करें। इसके लिए ये सारा प्लेस डेवलप किया। What we are seeing here, we started our journey from Puchri ke Lota, and we are here at Bhojan Thali. We made this whole trip, and what I was observing is the consistency that I've seen in the work. Otherwise, in India, if you go to any place, within 10 kilometers, you would see patchy roads full of potholes. Sometimes something is there. But trust me, you can come and visit yourself. This is a stretch of 81 kilometers where the entire road has been consistent. And trust me, I am standing on this road and I can vouch for the sanctity of the work done by Mr. Khan and Ms. Raje. Thank you. Radhe Radhe. ये बता दो महाराज क्या क्या है। ये दो कटोरा है खाने के, ये दो अपने आप ले बेटा, ले तेरे पकौड़े ले। कटोरा है जिसमें दूध डाला था, ये वही ना बैठ करके ओके। As a journey concludes, and I was telling you in the previous video that we are at Bhojan Thali, and there is a restaurant that was constructed for people to cook food. Now, we also enjoyed a snack towards the end of the day, so that in the Bhojan Thali, the way Lord Krishna actually enjoyed his meal without any. This is the whole the plate. Because the gopi didn't have any utensil to serve Bhagwan, so it is a naturally occurring rock which appeared in the form of bowls and plates. That is what we also just enjoyed a snack without any bowl or plate, but at the feet of Lord Krishna. This concludes our journey on the infrastructure, the first and the basic pillar of preserving bridge art and culture. Thank you, Radhe. Radhe Radhe. As you can see, it is a sunset, and we are still kind of doing the parikrama right from the Sami Gaon, our gate 1, till Nonera Gaon. Nonera village is still in Rajasthan, and we have completed this entire 82 kilometers parikrama, seeing the various things that Mr. Khan and Ms. Vasundhara Raje have built in their own tenure of government. And there has been a complete consistency in terms of road, but the only thing is the maintenance of the shelters, the hand pumps, the trees, and the art and the aesthetic beauty of various things that has been done is not being done currently. I would request the government and the people, the local people, to support the art by supporting first the infrastructure, by keeping things as it is, so that we can maintain our own heritage and culture. Radhe Radhe.